Okay, so students, let us start today's lecture. On last two lectures, we have discussed epsilon and FA in detail. Okay, in last lecture, we have discussed the epsilon and FA, its concepts, its formal definition, in which we have seen that epsilon and FA is nothing but it is same as NFA, except that we have to include the transitions on epsilon as well. Then we have taken one example of the language L is equal to 0 * 1 * 2 * through which we have established that epsilon and FA may further help us in obtaining the simpler designs. Okay. Then we have gone for the concept of epsilon closure, which was an important concept in case of epsilon and FAs. We have seen its definition and the process of obtaining the epsilon closure. Okay. And we call this normally E close Q. Suppose we are computing the epsilon closure of a particular state Q, then we call it as E close Q. And then we have seen its importance and impact on the notion of acceptance. Okay. In case of normal NFAs, our input string get accepted if among the multiple paths which the string may follow through the machine, if any of these paths is successful. And we reach to a set of states. So अगर उनमें कोई भी state final state है तो वो accept होता है, जबकि अगर epsilon and FA है तो ना केवल the set of state which we can reach, अगर उसमें कोई final state है तो accept करेगा, बल्कि अगर उसमें कोई final state ना भी हो लेकिन उसके epsilon closure में कोई final state हो, तब भी जो है हम अपने string को accepted assume करते हैं. So this is the change in the notion of acceptance. Then we have on last lecture we have seen the equivalence of epsilon and FA with normal NFA and DFA. So first process we have seen the removal of epsilon transitions, and we have found that our epsilon NFA are equal to the normal NFAs without epsilon moves. Okay, so we can make the machines either with the epsilon moves or without the epsilon moves. Then we have seen the process of conversion of epsilon NFA to the DFA. Okay, so this was the similar process which we have used for conversion of NFA to DFA. So in the similar manner, we have done the subset construction. The only difference was that at every point of time, we were always taking the epsilon closure of the result which we were getting. चाहे वो start state हो, तो start state क्या होती थी? जो NFA epsilon NFA की start state का epsilon closure हमारी जो है DFA की स्टार्ट स्टेट होती थी. इसी तरह से जो भी रिजल्ट हम कंप्यूट कर रहे थे उसमें DFA की टेबल की एंट्रीज कंप्यूट कर रहे थे, तो जो सेट कंप्यूट करते थे उस सेट को कंप्यूट करने के बाद उसका एप्सिलॉन क्लोजर लेकर के उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट्स बनाते थे. सो दिस वाज ऑल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अप टिल लास्ट लेक्चर. I think it is clear to everyone. Can we move with the today's agenda, which is equivalence of two DFAs. So now we will discuss whether the two given DFAs are equivalent or not. So let us first discuss what do we mean by equivalence of DFAs. It is nothing but simply whether two given DFAs represent the same language or not. Equivalence of DFAs means suppose we are having two DFAs, one DFA is M and another DFA we say is M dash. So we call these two DFAs equivalent if they represent the same language. Okay, so this is the meaning of the equivalence of DFA. So normally इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि आपको जो है आपको जो है just 1 minute. इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि आपको दो FAs दिए जाएंगे, एक M और एक M डैश, और आपको ये बताना होगा whether these two FA are same or they are different DFAs. Just hold for 1 minute.
Okay, students, are you able to hear my voice? Yes, sir. Okay. So we are resuming to the lecture. So we have discussed what do we mean by the equivalence of DFAs. Then question is how to decide whether two DFAs represent the same language or not. So this we do through the formation of a comparison table of गिवन DFAs. So दोनों DFAs के लिए हम क्या बनाएंगे, एक कंपेरिजन टेबल बनाएंगे. अब क्वेश्चन ये है ये कंपेरिजन टेबल का बेसिस क्या होगा, हाउ डू वी मेक दिस कंपेरिजन टेबल. So the basis of this comparison table is that two DFAs over sigma over some alphabet are equivalent if they accept the same set of strings over the sigma. Meaning thereby कि हमारे इस sigma star में, हमारे sigma star में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनमें से कुछ, उनमें से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग सपोज W ले रहे हैं, इज इट, सो दिस W इफ वी रन ओवर फर्स्ट DFA, सपोज हम M के ऊपर रन कर रहे हैं एंड सपोज इट रीचेस टू ए फाइनल स्टेट, then that string W if we apply over the second DFA M dash, it should also reach to the final state. Or if application of this W over this M is reaching to non-final state, then application of this W on M dash should also reach to the non-final state. Means एक word की जो destiny है that should be same over both the DFAs M and M dash. तो हम अगर ऐसा जो सिग्मा स्टार के सारे वर्ड्स W के लिए है, then we will say that those DFAs are equivalent. यानी कि मैं कोई भी स्ट्रिंग लूं, अगर पहले DFA पे एग्जीक्यूट कर रहा था और दूसरे DFA पे एग्जीक्यूट कर रहा था और हर बार डेस्टिनी सेम आती है, यानी कि अगर पहले पे फाइनल स्टेट पहुंचता है यानी कि एक्सेप्ट होता है तो दूसरे पे भी एक्सेप्ट होता है, अगर पहले पे रिजेक्ट होता है तो दूसरे पे भी रिजेक्ट होता है, तो वो DFAs मेरे क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट. They will be representing the same language because they are accepting the same set of strings over the sigma. Then come to the second condition, when two DFAs are not equivalent. अब हमें दोनों ही चीजें देखनी है कि कहाँ पे इक्विवेलेंट होगा, कहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होगा. अब इक्विवेलेंट चेक करने के लिए तो हमें इनफिनिट स्ट्रिंग्स चेक करने पड़ेंगे. ओके, सो व्हेन टू DFAs are not equivalent, there exists some string W over sigma satisfying the condition. What is that condition? This condition is if we apply W over M, we are applying W over M and we reach to a final state. And then suppose if we apply the same W on the second DFA, that is M dash, then we reach to a non-final state. Means for a given string W, the destiny of that word W is different on both the DFAs. यानी कि एक DFA पे M पे मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है और M डैश पे अप्लाई कर रहा हूँ तो नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं M डैश पे अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है और M पे अप्लाई करके नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है. मीनिंग देयर बाई कि डेस्टिनी जो है वो उसमें डिफरेंस है, उस वर्ड की डेस्टिनी में दोनों DFAs पे डिफरेंस है. अगर ऐसा एक भी वर्ड मेरे को मिलता है, then I can conclude that my two given two DFAs are not equivalent. So what we will do, we will utilize this difference in destiny of same input string on the given DFAs to decide that given two DFAs are not equivalent. तो not equivalent find करना it is easier. मुझे केवल एक string चाहिए ऐसा जहां पे भी मिसमैच हो, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग की किसी भी W की डेस्टिनी में अगर मिसमैच है दोनों DFAs पे, then I can decide yes, DFAs are different. और अगर कहीं पे भी मुझे डिफरेंस नहीं मिलता तो मैं फिर क्या कहूँगा उसको कि जो है मेरा DFAs इक्विवेलेंट है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नाउ विल सी हाउ विल बी मेकिंग द कंपैरिजन टेबल. क्लास, up till now conceptually it is clear how we are deciding whether two given DFAs are equivalent and how two given DFAs are different. Class. Yes, sir. Okay. Now we come to the formation of comparison table. How to form this comparison table? This will be basically a n+1 column table. अगर मेरे सिग्मा में n symbols है, where n is the number of symbols in the sigma. So मेरे अगर suppose sigma is equal to suppose A, B, C. There are 3 symbols in my alphabet. Then
table will consist of 4 columns. 1, 2, 3 and say table will consist of 4 columns. So 4 कॉलम होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ओके मैंने 5 बना दिए शायद. So there will be 4 columns. अगर मेरे पास 3 अल्फाबेट सिंबल है, यानी अगर n अल्फाबेट सिंबल्स हैं तो n+1 कॉलम मेरी टेबल में होंगे. अब इन कॉलम्स में आएगा क्या? द फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द फॉर्म q, q डैश. यानी कि यहाँ मेरे किस फॉर्म कहेंगे? q, q डैश. इस फॉर्म के मेरे टेबल आएंगे जहां पे q विल बी ए स्टेट फ्रॉम फर्स्ट DFA m. q will belong to m and q dash will be a state from second DFA m dash. So q dash will belong to m dash. यानी कि इस पेयर में पहली स्टेट पहले DFA से आएगी और दूसरी स्टेट दूसरे DFA से आएगी. अब पहले कॉलम में तो ये आ गया, बाकी कॉलम्स में क्या आएगा? रेस्ट ऑफ द कॉलम्स विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड विल कॉल दिस पेयर ऑफ स्टेट एज QA, QA डैश. सपोज मैं सिंबल A के एप्लीकेशन पे जो है जो जिन स्टेट्स पे पहुंचूंगा उसको मैं क्या कहूंगा? QA, QA डैश. ओके, सो अगर मैं Q पर A अप्लाई करूं तो मैं DFA M में QA स्टेट पे पहुंचता हूं सपोज. सो ये स्टेट यहाँ आ जाएगी. और अगर Q डैश पे भी मैं A अप्लाई करूं इन सेकंड DFA तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? QA डैश पर. सो QA डैश विल बी द स्टेट pair of state which I will be writing here. Similarly, the next symbol when I will apply, suppose B apply करता हूँ and I say on applying B on Q in first DFA, I reach to the state suppose QB. So I will write QB here. और अगर इस B को मैं Q dash पे apply करता हूँ second DFA में and suppose I reach to some state QB dash. So जो भी ये दो state का pair होगा that pair I will be writing here under the B column. Similarly, for third input C column I will be writing here. So जिस सिंबल को मैं अप्लाई करूंगा, इस सिंबल को अप्लाई करने पे जो भी मुझे पेयर ऑफ स्टेट मिलेगा, that pair of state I will be writing in the subsequent columns. So in this manner I will be making this comparison table. So इसमें टोटल इस कंपैरिजन टेबल में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? सपोज मेरा पहला DFA जो M है, इट कंसिस्ट ऑफ सपोज n नंबर ऑफ स्टेट्स. And suppose my second DFA M dash consists of M number of states. So इनके कितने पेयर पॉसिबल हैं? इनके n multiplied by M. This much number of pairs are possible. Okay. So इस टेबल में कितनी एंट्री होंगी? मैक्सिमम n into M एंट्री जो है इस टेबल के अंदर आएंगी. But we will not be writing all these entries. We will not be writing all these entries. What we will do? We will start our comparison table from the pair of the start states. यानी कि M की जो start state है suppose Q0, M dash की जो start state है suppose Q0 dash. इन दोनों से हम start करेंगे. Then we will see कि on application of A Q0 कहाँ पहुँचता है, on application of A Q0 dash कहाँ पहुँचता है, तो वो मैं A कॉलम के अंदर लिख दूंगा. इसी तरह से जब B अप्लाई करूंगा तो Q0 पे B अप्लाई करके और Q0 डैश पे B अप्लाई करके मैं कहाँ पहुंचता हूँ, उन स्टेट्स को मैं B कॉलम के अंदर लिखूंगा. सिमिलरली फॉर C कॉलम. सो इस तरह से मैं सारे कॉलम्स को जो है फिल कर लूंगा. अब इन कॉलम्स में जो भी मेरी नई स्टेट आई हैं जो कि ऑलरेडी इस फर्स्ट कॉलम में नहीं है, उनको मैं इधर फर्स्ट कॉलम में लिख लूंगा और फिर उनके लिए मैं पेयर ऑफ स्टेट्स चेक करूंगा. तो इस तरह से मैं कंप्लीट करता चला जाऊंगा. मैं इस अपने कंस्ट्रक्शन को इस तरह से रिपीट करूंगा. तो इस तरह से मेरी टेबल कंप्लीट होगी. क्वेश्चन ये है कि मैं टर्मिनेट कब करूंगा. टर्मिनेट करने में दो केसेस हैं आपके पास. अगर आप किसी भी ऐसे पेयर पे पहुंचते हैं जिसमें कि एक स्टेट तो फाइनल स्टेट हो और दूसरी स्टेट नॉन फाइनल स्टेट हो, यानी कि सपोज मैं Q0 पे अप्लाई किया या कोई भी स्टेट है यहाँ पे उस पर A अप्लाई किया, सपोज मैं कहाँ पहुंचा? QA पर पहुंचा ऑन एप्लीकेशन ऑफ A. इस पर A का एप्लीकेशन किया, सपोज मैं QA डैश पर पहुंचा. अब QA विल बी ए स्टेट ऑफ फर्स्ट DFA M. QA dash will be some state of second DFA M dash. Then we will have to see the nature of these states. Suppose QA is a final state. It is a final state. And Q dash is a non-final state. Then destiny
ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जिस सीक्वेंस में हमने इस ए को लिया है इट इज डिफरेंट. सो हम यहीं पे अपने कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करेंगे एंड वी विल से आवर गिवन टू DFAs आर नॉट इक्वलेंट. दे आर नॉट इक्वलेंट. ओके. देन द सेकंड केस, सपोज हमें ऐसा नहीं मिलता, मान लीजिए QA भी फाइनल स्टेट है, QA डैश भी फाइनल स्टेट है, तो हम अगले कॉलम के लिए देखेंगे. मान लीजिए यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर अगले कॉलम के लिए देखेंगे. अब जो नई स्टेट जनरेट हुई उन स्टेट के ट्रांजिशंस देखेंगे. तो इस तरह से हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि कोई नई स्टेट जनरेट होनी बंद ना हो जाए. यानी कि जब तक हमें नई स्टेट मिलती रहेंगी, जब तक कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कोई भी स्टेट रहेगी जो प्रोसेस करने से बची हुई है, तब तक हम इसको जो है प्रोसेस करते रहेंगे. और जब भी हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब हम इस प्रोसेस को एंड कर लेंगे. सो हियर इन द सेकंड केस कंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड when no new pair of state appear in second and subsequent column. यानी कोई भी नया स्टेट का पेयर जो है जनरेट नहीं होता. मीन्स ऐसा कोई भी पेयर जनरेट नहीं होता जो फर्स्ट कॉलम में ना आ चुका हो. सो इन दिस केस वी स्टॉप एंड कंक्लूड दैट M and M dash आर इक्वलेंट. यानी कि हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जहां पे हम जो है हमारी डेस्टिनी में डिफरेंस हो. क्योंकि हमने क्या किया, हमने देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था, पेयर ऑफ द स्टार्ट स्टेट से, और उसके बाद उन सिंबल्स को अप्लाई करके हम जहां जहां पहुंच सकते थे उन पेयर ऑफ स्टेट्स को हम लेते जा रहे थे. तो जितने भी पेयर ऑफ स्टेट्स रीचेबल हैं स्टार्टिंग स्टेट के पेयर से, वो सारे के सारे पेयर जो है हमारे पास हमारी इस टेबल के अंदर आ चुके हैं. तो अगर वो सारे के सारे पेयर्स पे डेस्टिनी सेम है तो इसका मतलब मैं कोई सा भी स्ट्रिंग चाहे दोनों DFAs पे एग्जीक्यूट करूं, मेरी डेस्टिनी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और मेरा दोनों DFAs क्या होंगे, इक्वलेंट होंगे. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपैरिजन टेबल. आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर. अगर प्रोसेस क्लियर हो तो हम आगे एग्जांपल्स पे चलते हैं, वहाँ इसको अप्लाई करके देखते हैं प्रोसेस को. क्लास. Yes, sir. Okay. So now I'm taking one example. You can see this example. This is the DFA M, and the second DFA is M dash. This first DFA M is consisting of three states Q1, Q2, and Q3. It has symbols, input alphabet symbols C and D. It has this transition function delta जो कि यहाँ इस ग्राफ के फॉर्म में आपको जो है दिया गया है. Is it? Q1 is the start state. वैसे भी इस ट्रांजिशन फंक्शन इस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा Q1 is the start state and Q1 is also the final state. So Q1 आप देख रहे हैं यहाँ final state. So this is the DFA given to you. So this is your M. Similarly here you are being given the second DFA M dash. It is consisting of 4 states named as Q4, Q5, Q6 and Q7. Again the इनपुट अल्फाबेट इज सेम, क्योंकि इनपुट अल्फाबेट तो सेम होना ही चाहिए तभी जो है आपका DFA सेम होंगे. इज इट? डेल्टा डैश इज द ट्रांजिशन फंक्शन जो कि आपको इस ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है. एंड हियर यू कैन सी दैट Q4 इज द स्टार्ट स्टेट एज वेल एज द फाइनल स्टेट. सो हियर आल्सो वी कैन सी दैट Q4 इज द स्टार्ट स्टेट एंड Q4 इज आल्सो द फाइनल स्टेट. नाउ वी हैव टू चेक वेदर दीज टू गिवन DFAs आर इक्विवेलेंट और नॉट. बिफोर गोइंग टू द प्रोसेस, वैसे ही इनको देख करके एग्जामिन करने की कोशिश करिए. कितना आसान है ये एग्जामिन करना कि भाई ये दो DFAs इक्विवेलेंट हैं या नहीं है. जस्ट कंपेयर करने की कोशिश कीजिए. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे इस DFA को, इसकी लैंग्वेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सिमिलरली आप इस सेकंड DFA को एनालाइज करेंगे, इसकी लैंग्वेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. देन यू विल कंपेयर वेदर बोथ लैंग्वेजेस आर सेम और नॉट. सो इन सम सिंपल केसेस you will be able to do it easily, but in most of the cases you cannot do it easily. While this method, through this method you can do it very easily. Okay, so इसके लिए हमें क्या करना है, कंपैरिजन टेबल बनानी है इन दोनों DFAs की. So let us make the comparison table of the DFAs. Okay, so हमने बना लिया. हमारे पास यहाँ 2 इनपुट सिंबल थे, तो हमारी ये 3 कॉलम की टेबल है. पहला कॉलम Q डैश, दूसरा कॉलम व्हाट कम्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट सिंबल C, और तीसरा कॉलम क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट सिंबल D. इज इट क्लियर? तो ये हमारी कंपैरिजन टेबल हो गई. अब शुरू कहाँ से करना है हमें, इनिशियल स्टेट्स के पेयर से. इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q1. इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q4. सो इसका पेयर क्या होगा, Q1 Q4, Q1 Q4. ओके, अब मुझे क्या करना है, इस एंट्री को फिल करना है. इस एंट्री को कैसे फिल करूंगा, मैं Q1 पे भी C अप्लाई करूंगा और Q4 पे भी C अप्लाई करूंगा और देखूंगा कहाँ कहाँ पहुँचता हूँ. Q1 पे अगर मैं C अप्लाई करता हूँ तो कहाँ पहुँचता हूँ, जस्ट C. Q1 पे C अप्लाई करा तो मैं Q1 पर ही पहुँचूंगा.
यानी कि इस पेयर में मेरी पहली स्टेट क्या होगी, Q1 ही होगी। अब Q4 पे अगर C अप्लाई करूं तो कहां पहुंचूंगा, Q4 पे C अप्लाई करा तो Q4 पे पहुंच रहा हूं, यस Q1 Q4 द सेम वन। अब देखिए Q1 और Q4 क्या है, Q1 इज ए फाइनल स्टेट, Q4 इट इज ऑल्सो ए फाइनल स्टेट। ओके, सो यानी कि ये दोनों ही स्टेट फाइनल स्टेट हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये डिफरेंट होती, एक फाइनल होती दूसरी नॉन फाइनल होती, तो मैं यहीं पे अपने प्रोसेस को स्टॉप करता और डिक्लेयर करता कि मेरे गिवन DFAs इक्विवेलेंट नहीं है, बट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई विल अप्लाई द सिंबल D। Q1 पे D अप्लाई करिए, देखिए क्या आता है, Q1 पे D अप्लाई करिए, इट इज कमिंग टू Q2, और Q4 पे अगर D अप्लाई करें तो इट इज कमिंग टू Q5। सो मेरा पेयर ऑफ स्टेट क्या बना, Q2, Q5, इज इट। अब Q2 कैसी स्टेट है, Q2 इज ए नॉन फाइनल स्टेट। Q5 कैसी स्टेट है, Q5 इज ऑल्सो नॉन फाइनल स्टेट, यानी कि दोनों ही स्टेट नॉन फाइनल स्टेट्स, यानी कि डेस्टिनी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखूंगा कि मेरी कोई और नई एंट्री जनरेट हुई क्या। अब देखिए ये Q1 Q4 ये तो ऑलरेडी इधर है, लेकिन ये Q2 Q5 ये नई एंट्री जनरेट हुई। सो आई विल राइट Q2 Q5 हियर, Q2 Q5 हियर, इज इट। अब Q2 Q5 के मुझे ट्रांजिशंस देखने C और D पर, Q2 on C and Q5 on C. So Q2 on C is Q3. Q5 on C is Q6. And Q3 and Q6 both are non-final states. Okay, so destiny same है, कोई फर्क नहीं पड़ता. So I will go for D. Q2 on D and Q5 on D. So Q2 on D is going to Q1 and Q5 on D is going to Q4. So it is Q1 Q4. अब मैं चेक करूंगा Q1 और Q4 की नेचर, Q1 is a final state, Q4 is a final state, so both are final states, so no problem. ओके, यानी कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई नई स्टेट जनरेट हुई क्या, देखिए Q3 Q6 इट इज अ न्यू स्टेट, सो आई विल राइट इट हियर Q3 Q6 एंड देन Q1 Q4, बट Q1 Q4 ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करती है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो Q3 Q6। ओके, सो अब वापस Q3 Q6 का मैं एक बार C पे अप्लाई करके देखूंगा, एक बार D अप्लाई करके देखूंगा। Q3 on C, so Q3 on C is coming to Q2. Q6 on C, Q6 on C is going to Q7, so it is Q7. Q2 और Q7 किस नेचर के हैं, Q2 is a non-final state, you can see here. Q7 is also a non-final state, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों non-final state है, is it? तो अब Q3 और Q6 on D, so Q3 on D and Q6 on D. Q3 on D is to itself, यानी कि Q3, so it is Q3. Q6 on D is also to itself, so Q6, so it is Q6. अब Q3 Q6, Q3 is also non-final state and Q6 is also non-final state, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई नई स्टेट जनरेट हुई, यस Q2 Q7 नई जनरेट हुई है, Q2 Q7 ये नई जनरेट हुई है, इज इट। Q3 Q6 ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। अब Q2 Q7 on C, so Q2 on C and Q7 on C, so Q2 on C is Q3, Q7 on C is Q6, Q2 on C is Q3, so पहले Q3 लिख लेते हैं, and Q7 on C is Q6, so Q3 Q6, both Q3 and Q6 are non-final state। देखिए Q3 non-final है, Q6 भी non-final है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q2 Q7 on D, so Q2 on D is Q1, Q2 on D is Q1, and then Q7 on D, Q7 on D is to Q4, Q4, Q1 is a final state, Q4 इट इज ऑल्सो ए फाइनल स्टेट, तो दोनों क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं कोई नई स्टेट जनरेट हुई क्या, Q3 Q6 ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में है, Q1 Q4 ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम में, और यहाँ मेरे पास कोई स्टेट बची भी नहीं जिसको मुझे प्रोसेस करना हो, तो यानी कि अब मैं इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, तो मेरा ये क्या होगा, यहीं पर टर्मिनेट होगा। सो इट विल टर्मिनेट हियर
and we will conclude that m is equivalent to m dash because it has terminated in the case 2. It is the case 2. यानी कि मुझे कहीं भी डिफरेंस नहीं मिला, मेरे सारे पेयर्स कंप्लीट होकर के सब जितने भी रीचेबल पेयर थे स्टार्टिंग पेयर से वो सारे पेयर आ गए. अब देखिए इसमें टोटल कितने पेयर हो सकते हैं, 3 स्टेट यहाँ थी और 4 स्टेट यहाँ थी, टोटल 4 थी. अब 12 पेयर पॉसिबल थे, 12 पेयर पॉसिबल थे. लेकिन उन 12 पेयर्स में से आप देखिए केवल ये 4 पेयर ही रीचेबल हैं. इज इट? सो सारे रीचेबल पेयर मैंने निकाल लिए, बाकी पेयर्स होंगे बट वो रीच नहीं हो रहे होंगे, वो किसी भी कंडीशन में मिल नहीं रहे होंगे. ओके, तो जितने भी रीचेबल पेयर हैं उन सब पे डेस्टिनी क्या है, सेम है. सो आई विल टर्मिनेट इन केस 2 एंड माई m विल बी इक्वलेंट टू m dash. आई होप इट इज क्लियर क्लास. दिस एग्जाम्पल इज क्लियर एंड प्रोसेस इज ऑल्सो क्लियर. Yes, sir. क्योंकि प्रोसेस में जो कुछ भी कमी रह गई होगी एग्जाम्पल्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी. अब लेकिन इस एग्जाम्पल में एक चीज रह गई, ये इसकी जो लैंग्वेज है और इसकी जो लैंग्वेज है मुझे आसानी से समझ में नहीं आ रही क्या है. तो आई एम नॉट एबल टू एस्टेब्लिश कि मेरा इस प्रोसेस ने बताया कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, वास्तव में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, ये सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा. सो टू एस्टेब्लिश दिस वी विल टेक सर्टेन more examples which are familiar to us. Okay, so the first example which I am taking is, this is your m, this is your m, a plus b asterisk a, all words ending with a, all words ending with a. दूसरा मेरा क्या है, m dash. m dash क्या है, all words ending with b. लगभग एक जैसे से DFAs हैं अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो, but we know that these are different DFAs. So obvious सी बात है अगर मैं इसकी कंपैरिजन टेबल बनाऊं तो m is not equivalent to m dash, ये मेरा रिजल्ट आना चाहिए. ओके, सो यहाँ एज्यूम कर लीजिए देखिए Q0 स्टेट है, ये Q1 स्टेट है. DFAs तो आप वेरीफाई कर सकते हैं करेक्ट है, a प्लस बी एस्ट्रिक a के लिए, b जब तक मिलेगा यहीं रहेगा, जैसे ही a मिलेगा फाइनल स्टेट, जब तक a मिलता रहेगा फाइनल स्टेट पर रहेगा, जैसे ही b मिलेगा नॉन फाइनल स्टेट पे. तो अगर a से एंड करेगा तो हमेशा Q1 में एंड करेगा. सिमिलरली ये क्या है आपका, b से एंड करने वाला है, जब तक a मिलता रहेगा यहाँ, जैसे ही b मिला फाइनल स्टेट, जब तक b मिलता रहा फाइनल स्टेट, जैसे ही a मिला नॉन फाइनल स्टेट. ये मेरी स्टेट कौन सी है, Q0 डैश एंड Q1 डैश. ओके, तो अब मैंने क्या किया यहाँ, इनकी कंपैरिजन टेबल बना लेता हूँ. फॉर्मेट क्या होगा, Q डैश, QA डैश और QB डैश, क्योंकि मेरे यहाँ इनपुट सिंबल क्या है, मेरा इनपुट अल्फाबेट सिग्मा क्या है, सिग्मा इज A कॉमा B. तो 2 सिंबल हैं तो इसलिए 3 कॉलम की टेबल बनाई है मैंने. अगर 3 सिंबल होते तो 4 कॉलम की टेबल बनती, 4 सिंबल होते तो 5 कॉलम की टेबल बनती, एंड सो. अब इसका कहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग पेयर से, Q0 डैश से. तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, Q0 डैश. ये मेरा पहला पेयर हुआ. अब Q0 पे A अप्लाई करूंगा एंड देन ये वाला कॉलम किससे आएगा, B अप्लाई करने. सो Q0 पे A अप्लाई कर रहा हूँ. So Q0 on A is going to Q1. So I will write here Q1. Now Q0 dash पे A अप्लाई करता हूँ. Q0 dash पे A अप्लाई किया, क्या आया, Q0 dash. Q1 it is a final state. It is a final state. While Q0 dash you can see here it is a non-final state. Non-final state. तो यानी कि पहली एंट्री पे मेरे को पता चल गया कि एक फाइनल पहुंची, एक नॉन फाइनल पहुंची, तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, मुझे यहीं अपने प्रोसेस को स्टॉप करना है. सो आई विल टर्मिनेट दिस प्रोसेस हियर एंड आई विल कंक्लूड दैट m is not equivalent to m dash. सो दोनों मेरे DFAs क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि दोनों DFA सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं करता. आई होप इट इज क्लियर क्लास. Yes, sir. Now we take one more example. Now अब हम ये assume करते हैं कि m तो मेरा वही है, all words ending with a, लेकिन अब की बार m dash बदल लिया मैंने. m dash क्या, all words ending with ab. वहां तो क्या था, क्लियर कट दिखाई दे रहा, एंडिंग विद b था, इधर एंडिंग विद a था, डिफरेंट है बिल्कुल, तो एकदम से यहाँ डिफरेंस बन गया. बट यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरू का कुछ ट्रांजिशन इसके और इसके एक से दिखाई दे रहे हैं, यानी Q0 B पे सेम, A पे अगली स्टेट पे आ रहा है, ऐसे Q0 डैश B पे सेम, A पे अगली स्टेट पे आ रहा है, लाइक दिस. ओके, सो कुछ स्ट्रक्चर शायद मिलता जुलता है. अब इसको देखते हैं क्या होता है. वापस
स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करते हैं। ये देखिए ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए बी तो करेक्ट है ना, ए बी मैंने सक्सेस पाथ बनाया, ओके, उसके बाद फिल कर लिया, जब तक बी मिलता रहेगा यहीं रहूंगा, जैसे ही ए मिलेगा सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाऊंगा। अगर बी मिला तो सक्सेस पे पहुंच गया, अगर बी नहीं मिला ए मिला तो स्टे करूंगा, क्योंकि स्टिल लास्ट वर्ड रेड इज ए, जैसे ही मेरे को बी मिलेगा वैसे ही सक्सेस पे मूव कर जाऊंगा। और जैसे ही बी मिला सक्सेस पे पहुंच गया, यानी कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे लास्ट 2 लेटर्स रेड क्या है, ए बी, ओके। अब अगर यहीं पे वर्ड फिनिश हो गया तो ठीक है, वर्ड इज एंडिंग विद ए बी। लेकिन अगर यहाँ फिनिश नहीं हुआ और ए मिला मुझे, तो मुझे वापस सक्सेस के लिए क्या चाहिए, एक बी और चाहिए। ए तो है मेरे पास, एक बी और चाहिए, तो मैं इसलिए Q1 डैश पे आया कि एक बी लेकर के सक्सेस पे आ सकूँ। और अगर मुझे बी मिला तो मुझे वापस सक्सेस के लिए पूरा ए बी दोनों ही लेटर चाहिए। तो ए बी कहाँ से मिलेगा, Q0 डैश से मिलेगा, तो इसलिए ऑन बी आई एम मूविंग हियर। सो दिस इज DFA। तो स्टार्ट करते हैं Q0 डैश से, इज इट। Q0 इसकी स्टार्ट स्टेट, Q0 डैश इसकी स्टार्ट स्टेट। अब Q0 पे A अप्लाई करिए, Q0 पे A अप्लाई करिए, क्या था Q1, Q0 डैश पे A अप्लाई किया Q1 डैश, ओके। सो Q1 डैश। नाउ विल लुक एट द नेचर ऑफ दीज स्टेट्स। Q1 इज ए फाइनल स्टेट, Q1 is a final state and Q1 dash is a नॉन फाइनल स्टेट। भले ही ट्रांजिशन देखिए सिमिलर से दिख रहे थे, यहाँ P पे इधर A पे इधर, बट ये आगे नहीं बढ़ा प्रोसेस, यहीं पे मेरा प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, क्योंकि एक मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है, और दूसरी मेरी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। सो आई विल टर्मिनेट एंड declare that M is not equivalent to M dash. M is not equivalent to M dash. Is it clear, class? Simple है? Yes, sir. Okay. Now we take one more example. Again, M को हमने वही रखा, यही है, all words ending with A. और M dash अब की बार मेरा क्या हो गया, all words having odd number of A's. All words having odd number of A's. Odd number of A's means Q0 dash start state है, ये even number of A's को दर्शा रहा है, ये Q1 dash odd number of A's को दर्शा रहा है, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट से बनाया इसको हमने। सो जैसे ही पहला A आया तो A's का नंबर क्या हुआ, ऑड हो गया, तो इसलिए Q1 dash पे इस पे मूव कर गए फाइनल स्टेट पे। अगला A हमें वापस उसी स्टेट पे ले जाएगा, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ एज विल बिकम इवन, और नंबर ऑफ बी से नंबर ऑफ एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी कितने भी हैं हमारा स्टेट चेंज नहीं होगा, हम उसी स्टेट पे स्टे करेंगे। अगर इस Q0 डैश पे है तो Q0 डैश पे रहेंगे, अगर Q1 डैश पे हैं तो Q1 डैश पे ही रहेंगे। सो ऑल वर्ड्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ एज विल बी गेटिंग एक्सेप्टेड थ्रू दिस DFA। अगेन स्टार्ट करते हैं दोनों के स्टार्ट स्टेट के पेयर से, Q0, Q0 dash. Q0 on A, it is going to Q1. It is going to Q1. Now Q0 dash on A is going to Q1 dash. Is going to Q1 dash. Q1 is a final state. Q1 dash is also a final state. दोनों final state है, तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकता हूँ। सो अभी ये मैंने A अप्लाई किया था, अब मैं क्या करूंगा, B अप्लाई करूंगा और इस सेकंड कॉलम की एंट्रीज को फिल करूंगा। Q0 on B and Q0 dash on B. Q0 on B is Q0. Q0 dash on B is Q0 dash. So it is Q0 and Q0 dash. अब देखिए Q0 ये नॉन फाइनल स्टेट है, Q0 डैश ये भी नॉन फाइनल स्टेट है, दोनों स्टेट नॉन फाइनल स्टेट है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने प्रोसेस में आगे बढ़ सकता हूँ। अब देखिए Q1 डैश एक नया पेयर है, सो Q1 डैश ये एक नया पेयर है, इज इट। Q0 डैश ऑलरेडी यहाँ पे था, तो इसलिए मैं आगे नहीं लिखूंगा, इज इट। अब Q1 डैश पर चेक करता हूँ, नहीं Q1 ऑन A एंड Q1 डैश ऑन A, इस वाली एंट्री को फिल कर रहा हूँ। So Q1 on A, it remains at Q1. It remains at Q1. Q1 dash on A. Q1 dash on A, it is going to Q0 dash. It is going to Q0 dash. Q1 is a final state, you can see here. Q0 dash, it is a non-final state, you can see here. So एक state आपकी final आ गई
और एक स्टेट नॉन फाइनल लगी, तो ये पेयर मेरा डिफरेंस को शो कर रहा है. सो आई विल टर्मिनेट and declare that M and M dash are not equivalent. It is also clear. आप देखिए यहाँ तो पहली एंट्रीज पे पता चल रहा था, बट यहाँ देखिए हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये दो बिल्कुल एक से डिजाइन दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज मैच कर रहा है, बट आप देखिए यहाँ पहली एंट्री में पता चला ये स्ट्रक्चर वाइज अलग था, लेकिन फिर भी यहाँ आगे तक जो है मूव कर, तो कहाँ तक मूव करेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं पे भी लैंग्वेज डिफर कर रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के हमें किसी ना किसी पेयर में डिफरेंस जरूर मिल जाएगा. इज इट क्लियर? दिस एग्जांपल इज क्लियर क्लास? Yes, sir. Okay, so now we'll take the last example. This example is M dash is suppose A asterisk plus B asterisk whole asterisk A. So this do not go for this expression, just look at this DFA. Okay, this DFA is Q0 dash. On A I am moving to Q1 dash. जब तक मेरा A रहता I remain at the Q1 dash. Okay, so यानी कि अगर A आया और A ही आता रहा तो मैं फाइनल स्टेट पर रहूंगा. ठीक है, लेकिन अगर मुझे शुरुआत में B मिला तो मैं Q2 डैश पे गया और जब तक B मिला वहीं पे रहा. इज इट? एक नॉन फाइनल स्टेट पे. जैसे ही A मिला वैसे ही एक फाइनल स्टेट पे पहुंच गया और जब तक A मिलता रहा एक फाइनल स्टेट पे ही रहा. इस फाइनल स्टेट से अगर मेरे को B मिला तो नॉन फाइनल स्टेट पे आ गया, जहां से मैं वापस A लेकर के फिर फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ. सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये M डैश जो है ये और जो ये M है ये दोनों लैंग्वेजेस सेम है. एक्सप्रेशन इनकी डिफरेंट जरूर है, इनके डिजाइन डिफरेंट जरूर हैं, बट ये दोनों ही लैंग्वेज सेम है. ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए, चूंकि अगर आप ए एस्ट्रिक प्लस बी एस्ट्रिक इट्स होल एस्ट्रिक, इसको अगर देखेंगे, चूंकि अभी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन डिटेल में नहीं पढ़ी है, अभी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन इनफॉर्मली ही पढ़ी है, तो अभी आपको आइडेंटिटीज नहीं मालूम. तो अगर इसको आप देखें तो दिस होल एक्सप्रेशन दिस मच, दिस वन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इट इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी एस्ट्रिक. So ultimately it will become A plus B asterisk A. So that's why this M and this M dash both will be the same language. Both FAs represent the same language. Okay, ये मैंने just आपको एनालाइज करके बताया जिससे आपको पता चल जाए. आप में से अगर कुछ लोगों से कहा जाए ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए बनाओ तो कुछ ऐसा डिजाइन भी कुछ लोगों ने जरूर बनाया होगा. इज इट? सो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है. ये मैंने आपको इसलिए शो किया सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कि दीज टू लैंग्वेजेस, दीज टू DFAs आर सेम. तो यहाँ से हमारा सक्सेस होनी चाहिए, केस 2 में टर्मिनेट होना चाहिए. ओके, तो स्टार्ट करिए. Q0 डैश, Q0 स्टार्ट स्टेट पहले वाले की, Q0 डैश स्टार्ट स्टेट दूसरे वाले की. On A, Q0 on A is going to Q1. So it is Q1. Now Q0 dash on A is going to Q1 dash. Q1 dash. अब Q1 और Q1 dash, आप देखिए Q1 is a final state, Q1 dash is also a final state, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है. ठीक है, अब इस पे B अप्लाई करते हैं. ये A अप्लाई करने पे, ये B अप्लाई करने पे. अब B अप्लाई करते हैं. Q0 on B is Q0 itself. Q0 dash on B is Q2 dash it. So Q0 on B is Q0 itself. Now Q0 dash on B is Q2 dash. It is Q2 dash. अब Q0, it is a non-final state. Q2 dash, it is also a non-final state. Is it? So यानी कि दोनों non-final state हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं देखता हूँ कौन से नए पेयर जनरेट हुए. 2 नए पेयर जनरेट हुए, Q1 और Q1 डैश, Q0 और Q2 डैश. सो Q1 और Q1 डैश और दूसरा पेयर क्या है, Q0 एंड Q2 डैश. अब मैं Q1 और Q1 डैश का देखूंगा. Q1 on A is coming to Q1 itself. So on A it is coming to Q1 itself. Q1 dash on A is coming to Q1 dash itself. So it is Q1 dash. Again we know that Q1 and Q1 dash both are final states, so no problem. Now Q1 and Q1 dash on B. So I will fill this entry. Q1 on B is going to Q0. So it is Q0. Q1 dash on B. Q1 dash on B is going to Q2 dash. It is Q2 dash. Is it? So Q0 is a non-final state and Q2 dash, it is also a non-final state, so no problem.
दोनों नॉन फाइनल स्टेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट? अब कोई एंट्री जनरेट हुई क्या? आप देखिए Q1 Q1 डैश ऑलरेडी यहाँ है, Q0 Q2 डैश Q0 Q2 डैश ऑलरेडी यहाँ है, यानी कोई नई एंट्री जनरेट हुई, बट अभी ये एंट्री है मेरे पास जो प्रोसेस करने से बची हुई, तो मैं इसको प्रोसेस करूंगा। सो Q0 Q2 डैश ऑन A, यानी Q0 ऑन A. So I will check Q0 on A. It is Q1. It is Q1. Q2 dash on A. Q2 dash on A. It is going to Q1 dash. It is going to Q1 dash. अब देखिए Q1, it is a final state. Q1 dash, it is also a final state. So दोनों final state हैं तो कोई problem नहीं। अब मैं B के लिए check करूँगा Q0 on B. Q0 on B, you can look in this first DFA. Q0 on B is Q0 itself. Now Q2 dash on B in second DFA. Q2 dash on B, it is Q2 dash itself. So it is Q2 dash. We know that Q0 is also non-final state, Q2 dash is also non-final state, दोनों non-final है तो कोई problem नहीं। कोई नया पेयर जनरेट हुआ, आप देखिए Q1 dash ये ऑलरेडी यहाँ है, Q0 Q2 dash ये ऑलरेडी यहाँ है, यानी कि कोई नया पेयर भी जनरेट नहीं हुआ और यहाँ मेरे पास प्रोसेस करने के लिए भी कोई पेयर नहीं बचा। So we have entered into the case 2. So we will terminate construction and will conclude that M is equivalent to M dash. So in this manner, this comparison method work, and this is all I wanted to discuss in the equivalence of two DFAs. So in this manner, we can prove that whether two given DFAs are equivalent or not, whether they are representing the same language or not. Is there any doubt? You can ask class. Is there any doubt? No, sir. No, sir. So then we can close here. So this was all I wanted to discuss for today. Thank you all. Now you can leave the class. Thank you, sir. Thank you, everyone.